So first thing first, can you all print console.log on VS Code now, everyone? Right, right. ठीक है, ठीक है. तो let's do a quick recap of जो भी हमने सीखा था last session में. It was basically loops stuff, right? So let's say I have to print all the even numbers between 1 to n, and n can be anything, right? Anything in the sense, let n equals to 12. So including 12, I have to print all the even numbers between 1 and 9. How can I do it? Let's say for loop लिखेंगे, तो उसके लिए for I can go and write where I equals to 0, right? I is less than, I have to include 12. 12 को include करना है, तो will I be writing less than 12 or less than or equals to 12? Correct. So I'll be writing less than or equals to n, and I'll be doing I plus plus. Now in this, I can do if n is divisible by 2, then we will just print console.log that n, else कुछ भी नहीं करेंगे. Clear है? Is this clear? For loop overall clear? Right? Let's say we have to write same thing in while loop. वो कैसे करेंगे? While loop में कैसे करेंगे? So we'll be writing while, we'll be creating a variable I, right? So let I equals to 0 again, and इसमें while I is less than or equals to n, इसके अंदर exactly same thing. If n is divisible by 2, console.log n, right? चलेगा? Will this code work? Will it be printing every number from 1 to 0 to n? No, yes, no, yes. Okay. जिन लोगों ने no बोला है, can you please tell me कि why this won't run? Infinite time क्यों run करेगा? Increment किया है क्या? While loop में नहीं किया है, right? We'll have to do the increment too. Increment करेंगे. Now will it work? ठीक. तो अभी हमारा कोड चलेगा. उसमें we learned about something that was called continue and break, right? So let's say in here, rather than writing if statement like this, if I wrote if n is equals to 5, I wrote break. अभी क्या print होगा? What will be the output? Right? 1, 2, 3, 4. I haven't consoled, but let's say कि यहाँ पे मैंने console लिख रखा है, right? console.log n. ठीक. तो अभी क्या प्रिंट होगा? 1, 2, 3, 4 and 5, राइट? n नहीं करना है अपने को, i करना है, राइट? i बढ़ा रहे हैं. I'll be printing i. यहाँ पे भी i. ठीक. तो that's gonna happen. Let's say कि I wrote continue. So will it be just skipping 5? 5 को skip करेगा and then it will move on. Right? Okay. So let me run it once and let me show you. If I do a node index reference n before initialization, so n तो यहाँ पे है. Here node index. So I'm printing 0, 1, 2, 3, 4, 5 and all, right? We are not skipping 5 because पहले ही print कर दे रहे हैं, right? Let's print it after ये statement run कर दिया. ठीक. अभी print करके देखते हैं. So if we print now, अभी देखेंगे कि it is skipping 5, right? If I do node index, it will be skipping again. It's not skipping 5. If n is 5, do we need n to be 5? I check करेंगे, right? If I is equals to 5, we'll be doing a continue. ठीक है, चलो. Let's run it again, and now we should be skipping it. So 0, 1, 2, 3, 4,
and we're skipping 5 and we are going from 6, right? वहीं अगर हमने break लिखा होता, break, so if I do a node, not node, let me clear it quickly. Node index, तो ये 4 पे रुक रहा है, right? Now let's go to while loop. While loop में try करते हैं. So in while loop, if I let me quickly comment this one out and let's write. If I is equals to 5, we will do is break, right? हम break कर देंगे and we are actually console.log I. So let me quickly write it. Node index, again n is not defined, of course, and it's not defined. N is equals to let's say tick. So I'll write a node index and I'll be printing from 0 to 4, right? Break statement. Then if I write continue, if I do a node index, last lecture में भी यही हो रहा था, but I checked it and I put it in notes. Any idea क्या होने वाला है अभी while loop में? Even though continue लिखा है, 1 to skip 5. Okay, let's see क्या होगा. So I run it, it's still printing till 4. You know what was happening? हमने continue कर दिया, so this loop, ये loop क्या कर रहा है ना? It's skipping everything below it, right? तो उसने कभी i++ किया ही नहीं. तो जब अगली बार i 5 है, अगली बार ये लूप में आएगा तो i तब भी 5 ही रहेगा, राइट? वो फिर से कंटिन्यू, मतलब ये कंटिन्यू इन्फिनिट तरीके से चलता जा रहा है. व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें i को प्लस करना पड़ेगा कंटिन्यू से पहले. ठीक, क्या मैं कंटिन्यू के बाद i++ करूंगा तो चलेगा? विल दैट वर्क आफ्टर राइटिंग द स्टेटमेंट? नहीं, राइट? वही मकसद था कि हमें कंटिन्यू से पहले जो भी करना है वो करना है. तो नाउ इफ आई I'm not able to write anything. Wait. No, let me again open that terminal. So if I do a node index, अभी I am skipping 5 और हम 8 तक प्रिंट कर रहे हैं. क्लियर एवरीवन? क्लियर है क्या? फॉर लूप में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि फॉर लूप में हम साथ ही साथ स्टेटमेंट लिख देते हैं, राइट? तो उसको कंटिन्यू से मतलब नहीं है, वो एक बार लूप खत्म होगा तो ये स्टेटमेंट चलना ही है. ठीक, that's why it's that's what happening in for. ओके, चलो. तो आज के लेक्चर का नाम क्या है? अरे नाम है, एरे नाम है, क्या नाम है? एरे, राइट? एरे नाम है. ठीक, तो एरे सुना है क्या इसके बारे में कभी? एरे इंग्लिश टर्म सुना है क्या? एन एरे ऑफ बुक्स, एरे ऑफ पीपल, राइट? बुक्स नहीं पढ़ते हो लग रहा है ऐसा. चलो कोई नहीं, विल कवर इट ऑल टुडे. तो एरे कवर करने से पहले लेट मी टेल यू कि एरे नहीं, एरे इज पार्ट ऑफ समथिंग, some actually bigger thing that is called data structure. Any idea data structure क्या होता है? अभी तक हमने डेटा टाइप सुना था, स्ट्रक्चर सुना है क्या? नहीं सुना है, राइट? Let's do one thing. Let's do a quick search on MDN. If I write data structure, MDN, ठीक, MDN will show us, उसका एक काफी अच्छा सा डेफिनेशन है. That's why I want to show you. सिर्फ एक लाइन का डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली. ठीक, लेट मी कॉपी इट और एमडीएन को होल्ड करते हैं उस लाइन पे. लेट्स सी, लेट मी क्लोज दिस वन फॉर नाउ. चलो, लेट्स होल्ड एमडीएन फॉर दिस सेंटेंस. बोलना क्या चाहता हूं? तो यहाँ पे दो चीज हमें ध्यान देना है, एक तो ऑर्गेनाइजिंग द डेटा और एक कैन बी यूज्ड एफिशिएंट.
ठीक, लेट से कि आपको एक लिस्ट बनाना है ऑफ आइटम्स, ग्रोसरी आइटम, राइट। तो ग्रोसरी आइटम लेट से फ्रूट्स ऐड करने हैं, तो बोलो फ्रूट्स, लेट से कि एप्पल, राइट, ऑरेंज, कीवी एंड एक आप लोगों का हो जाएगा मैंगो, सो विल गो विद मैंगो, तो मैंगो, राइट। नाउ मेरे पास एक और बता दो, एक और बता दो, लेट्स गो विद ग्रेप्स, ठीक, चलो। एंड ठीक है, तो वी हैव एक्चुअली 5 चीजें हमारे पास एक लिस्ट में, तो क्या ये ग्रुप ऑफ डेटा है? यस, यस, इज इट अ ग्रुप ऑफ डेटा, राइट। अभी मान लो कि इफ आई टेल यू गाइस टू प्रिंट इट, हर एक फ्रूट को प्रिंट करने के लिए बोलूं, तो अभी के लिए जितना हमें अभी आता है उस अप्रोच से, हाउ आर वी गोना अप्रोच दिस, हाउ विल डू इट? Store in variable and then print it. You will be going on writing apple, right? This will be something like this, and then we'll be going on writing TV. That will be something like this. इसी तरीके से होगा, right? इसी तरीके से होगा। Let's say दुकान गए, आपको और भी कुछ याद आया, so you keep on adding. You are writing banana. You are writing. Why am I out of fruits? Mosambbi, right? ठीक, वी हैव दीज मेनी फ्रूट्स एंड वी कीप ऑन एडिंग देम। तो अगर हम एक एक वेरिएबल बनाते रह गए, इज दैट अ वायबल थिंग? अच्छा, ये तो सुपरफिशियल एग्जांपल हुआ, ये तो सुपरफिशियल एग्जांपल हुआ। रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट ई कॉम वेबसाइट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। कोई भी फेमस वेबसाइट पे डेली कितने यूजर लॉग इन करेंगे? गेस, जस्ट अ गेस। 100, 10, 20, कितने? मिलियंस, राइट। नंबर मिलियन में रहने वाला है। तो अगर आप सबका यूजर नेम सेव कर रहे हो, जैसे यूजर 1, वी हैव यूजर 2, इस तरीके से इफ यू आर सेविंग ईच वन ऑफ यूजर्स नेम, तो विल बी क्रिएटिंग, एक एक का वेरिएबल बनाओगे, नॉट अ वायबल सोल्यूशन, राइट। जब हमें डेटा को स्टोर करना है ना कहीं पे, देन वी यूज समथिंग दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर, right? So it will be a box in which we will be storing all the data, right? Rather, we'll be organizing the data. समझ आता है? एरे की बात में होगी। पहले ये बताओ कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज करना है एट फर्स्ट प्लेस। समझ आ रहा है? राइट, एवरीवन, एवरीवन, द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर, लुकिंग गुड, लुकिंग गुड, एंड प्लस अपना काम बचाने के लिए, राइट। एक एक वेरिएबल बना के उसे प्रिंट करोगे, दैट्स नॉट अ वायबल सोल्यूशन, राइट। देन हमने क्या किया, वी क्रिएट डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट। अब उस डेटा स्ट्रक्चर में फर्स्ट वी शुड बी ऑर्गेनाइजिंग डेटा। तो लेट्स से कि मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया, मैंने एक नया डेटा स्ट्रक्चर इन्वेंट किया, एंड आई राइट समथिंग लाइक दिस, आई हैव गिवन इट अ नेम, और उसमें मैंने स्टोर किया, ठीक। तो लेट्स से कि मैंने एप्पल स्टोर कर दिया, मैंने ऑरेंज स्टोर कर दिया, मैंने कीवी स्टोर कर दिया, एंड आई स्टोर मैंगो, राइट, मैंगो स्टोर कर दिया। इस डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ताकि हम इसे एफिशिएंटली यूज कर पाए? पहले तो मैं बताता हूँ, वी शुड बी एबल टू ऐड एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स ऐड करना चाहिए। वी शुड बी एबल टू ऐड एलिमेंट्स इन दैट डेटा स्ट्रक्चर, यस। एनीथिंग एल्स आपकी तरफ से कोई आइडिया? वी शुड बी एबल टू प्रिंट दैट, वेरी गुड, वेरी गुड। एलिमेंट को प्रिंट भी तो करना है, वी शुड बी एबल टू प्रिंट दैट एलिमेंट्स, राइट। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो जो एक एक चीज डालते हैं ना, यू कैन कॉल देम एलिमेंट्स, ठीक। तो उन्हीं को मैं एलिमेंट्स बोल रहा हूँ। We should be able to update that elements, very good, very good. We should be able to update those elements, right? And we should be able to delete those elements, delete elements. बस इतना काम कम से कम हमारा डेटा स्ट्रक्चर करना चाहिए, so we can say कि we can use this thing efficiently. Yes, agreed, everyone agree कर रहे हो, right? अगर हमारा डेटा स्ट्रक्चर ये काम करने लगा, वी कैन से कि इट्स अ गुड वन। वी शुड बी एबल टू ऐड अ न्यू फ्रूट इन इट, वी शुड बी एबल टू प्रिंट दैट एलिमेंट। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग नेम करूं, मैं या तो सारे चीज प्रिंट करूं, या फिर मेरे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि मैं एक अकेला फ्रूट प्रिंट कर सकूं, ठीक।
plus I should be able to update the elements, right? So let's say मुझे orange के बजाय I have to take pineapple. I should be able to do it, right? And let's say we have to delete something. तो आज we won't be learning much of a delete. एक चीज सिखाऊंगा कि how you can delete the last element, ठीक? But हाँ, we'll be covering these 4 stuff, right? तो जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, एनी गेस क्या होने वाला है? आई मीन दैट्स इन द नेम, नाम नहीं रखा है, इट्स एरे, एरे पढ़ेंगे। तो लेट्स सी कि हमने ये जो लिस्ट लिखा है इसको एक एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो लेट मी राइट दिस इन हियर, इसको कर देता हूं मैं कमेंट आउट एंड लेट्स राइट अ लिस्ट एक्चुअली, ठीक है? तो the syntax for writing an array will be variable, right? This can be var, let, const, anything. Var and let ही रखना mostly. Don't use const for now. And then array का नाम, right? Array name, right? And then ये होता है array का syntax, square brackets. इसके अंदर you can put orange, you can put kiwi, and you can put mango. ठीक? Any doubts? How is the syntax looking for array? For now, is it clear कि कैसा दिखेगा? Now this thing, ये चीज फिक्स नहीं रहेगा. This can be anything, right? So it can be anything. Just telling you, right? Anything, right? Anything array. I mean, I have a habit of writing ARR, right? So I am using that. And इसके अंदर I'll write orange, I'll write kiwi, I'll write mango, and let me get banana too. Take, chalo. This is the syntax. If I go and if I do a console.log, take my word, it's gonna print every elements, right? If it was normal JS का तरीका फॉलो हो रहा होता, बट एक चीज प्रॉब्लमैटिक है, वो ये है, ये जो नाम है, इज दिस द वे दैट वी राइट इन JS? ऐसे लिखते हैं क्या? कैन आई डू समथिंग लाइक दिस इन JS? console.log mango, क्या ये एरर थ्रो करेगा? लाइन नंबर 67, विल इट बी थ्रोइंग एरर, right? Double quotes, string, right? Anything word is gonna be string. Let me get that. I'll pick this, I'll add the quotes, I'll pick this, I'll do a shift plus that quotes, again I'll pick this, and again I will pick this. Click. Chalo, let me quickly open the terminal and let's see कि क्या हो रहा है. And am I recording the session? Oh yes, I am. If I run the terminal and ये वाला क्यों चल रहा है? Let me close this then. Sure. If I do a node index, you will see we are printing the array. और ये hello world कहाँ से print हो रहा है? Let me comment that out. दिख रहा है क्या? We are able to print everything at once. Easy. बस यही है डेटा स्ट्रक्चर, राइट? तो लेट्स से कि यू हैव टू एक्सेस मैंगो, सिर्फ मैंगो प्रिंट करना है. एनी आइडिया? सिर्फ मैंगो प्रिंट करना है तो अच्छा, नया वेरिएबल नहीं बनाना है. लेट्स कीप द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट. ओके, फ्यू ऑफ यू गाइस नो, तो आई होप कि प्री क्लास देख के आए हो, राइट? चलो, अगर नहीं देखा है तो लेट्स कवर दैट. For accessing one particular element, you have to know something that is called index. और index जानने से पहले, do you guys know something that is called key value pairs? ये नाम कभी सुना है क्या? सदियों पहले HTML में एक बार बताया था मैंने, एट्रीब्यूट्स जब पढ़ा रहा था तो बोला था क्या कुछ की वैल्यू पेयर्स? डिड आई राइट? चलो, तो whenever we are creating an array, no, array क्या करता है JS inside? जब हम array create करते हैं, let's say I have elements in this 1 2 3 4 5, right? Whenever I'm adding those elements, array internally it adds some address to this thing. हर element को it is gonna give an address. So this address is numeric values and it starts from 0 से start होता है, right? That will start from 0 1 2 3 4 and कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4
5, राइट? 5 एलिमेंट्स है, तो विल बी हैविंग 5 थिंग्स. 0 से स्टार्ट होगा तो इट विल बी एंडिंग एट 4, राइट? दिस इज द एड्रेस ऑफ दीज स्टफ. उसी तरीके से अगर मैं मैप करना चाहूं इसका ऑरेंज कीवी मैंगो बनाना का एड्रेस, एड्रेस this will be something like 0, 1, 2 and 3. is this concept समझ पा रहे हो? this thing what index is actually, it's your address. now रितेश क्यू वैल्यू पेयर क्यों बोला था? की वैल्यू पेयर इसलिए बोला था क्योंकि जब भी हम एरे बनाते हैं ना, 0 विल बी असाइनिंग टू ऑरेंज, ठीक? orange, not ordinate change. Then 1 will be assigned to kiwi, then 2 will be assigned to mango, and then 3 will be assigned to banana, right? और ये एड्रेस ना गाइस जब भी बनाओगे कभी भी, चाहे आप एरे में नंबर डाल रहे हो, चाहे आप एरे में बूलियन डाल रहे हो, चाहे आप एरे में स्ट्रिंग्स डाल रहे हो, it will always start with 0. and quickly tell me, is this thing possible? ऐसा कुछ होने की पॉसिबिलिटी है? इज इट पॉसिबल कि दो वैल्यूज का एड्रेस एक ही हो? नो, राइट? नो, वो नहीं करना है. तो की वैल्यू पेयर्स में की इज ऑलवेज गोना बी यूनिक. ये बात ध्यान रखना, की वैल्यू पेयर्स का कॉन्सेप्ट इट्स गोना कम वेरी मेनी टाइम्स, राइट? बहुत बार आने वाला है. की वैल्यू पेयर्स में लेट मी राइट इट इन ब्रैकेट, की इज की, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट ऐड करके आई राइट इंडेक्स फॉर हियर इज गोना बी यूनिक. Clear people? Is the concept of index clear to you guys? So let's say कि if I write, console ही लिखूंगा, but let's say कि if I write print array का element number 1, what will I be printing? What will I be printing? Orange print करूंगा कि kiwi print करूंगा? Kiwi. Very good, very good. If I write element number 3, what will I be printing? Banana या फिर invalid? Banana, right? Right? And if I write 4, अभी क्या होगा? Invalid. Very good. Very good. तो you guys got an idea कि कैसे करते हैं. Now let me show you कि उसे use कैसे करते हैं इंडेक्स को. तो कुछ नहीं करना है. All you have to do is you have to write a square bracket, right? जैसे एरे लिखते हैं वैसे एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ और उसके अंदर उसे इंडेक्स का नंबर लिखना है, राइट? तो लेट्स से कि आई हैव टू प्रिंट मैंगो, आई विल बी राइटिंग 2. if I go and if I do a node index, of course, if I do a node index, I'll be getting mango. Clear? Now let's say कि I have to print orange. What will I be writing in here? पूरा लिख के भेजो. ये पूरा कैसे लिखेंगे? पूरा लिख के भेजो एक बार चैट में, everyone. Good. Correct. एरे में मैप करने का मतलब, जैसे मतलब 0 पकड़ा तो आई विल असाइन इट ऑरेंज, राइट? तो लेट्स से कि अगर मेरे पास एक क्लास है, राइट, आप लोगों को 59 पीपल एंड आई एम मैपिंग यू गाइस, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा कि रोल नंबर 1 इज लेट्स से ज्योति, रोल नंबर 2 विल बी मृदुल, रोल नंबर 3 विल बी अभिजीत. दैट इज सॉर्ट ऑफ मैपिंग, ठीक? असाइनिंग यू कैन, अभी के लिए यू कैन जस्ट कीप दिस की असाइन करनी, ठीक? तो इज देयर एनी problem in understanding how you can access an element in an array? Anything? For now you don't need to print it without bracket, don't worry. अगर सभी को प्रिंट करना हो तो सिर्फ एरे प्रिंट कर दो. तो जस्ट राइट एरे and you can go and you can do an index and you will get everything, ठीक? And if you want to print it in one by one manner, अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है, I'll show you shortly, ठीक?
Abhijit, can you type it in chat? Can you? Or do you want me to unmute you? Okay. So now that we have covered how can we create an array and how can we access it. Let me unmute them. Please do it quickly then. Now you should be able to unmute, Abhijit. ओके सर मैं ये पूछ रहा था, यहाँ पे तो मान लो कि सर थोड़ा है, 3-4 है, तो यहाँ पे मैंने काउंट कर लिया। अगर ये बड़ा है, बहुत ज्यादा हो, फिर कैसे करेंगे? बड़ा है इन द सेंस? हाँ, मतलब यहाँ पे तो ऑरेंज है, मैंगो, बनाना, मान लो कि सर 3-4 है, और यहाँ पे 20, 30 हो, 25, 50 हो, फिर कैसे अभी करेंगे अभी उस इसको पे काउंट? जाएंगे, अभी उस पे जाएंगे। अभी बस मैं सिखा रहा हूँ कि एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक, लूप वगैरह चलाना ओके सिखाऊंगा, सर, चिंता मत करो। ओके सर, श्योर। थैंक यू। राइट, अगेन जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो ठीक है, तो फॉर नाउ एनी डाउट्स, एनीथिंग? जस्ट एक्सेसिंग द एलिमेंट्स, बाकी चीजें कवर होंगी, डोंट वरी। ठीक, नाउ लेट्स से कि हमें कीवी के बजाय वी हैड टू राइट समथिंग एल्स। पाइनएप्पल या मैंगो लिखना था, मैंगो इज ऑलरेडी देयर, लेट्स गो विद ग्रेप्स। ठीक, लेट मी पिक दिस एरे एंड लेट मी गेट दिस हियर, यहाँ पे ले आता हूँ। एंड लेट्स से कि आई हैव टू ऐड समथिंग एल्स, राइट, कीवी के बजाय। तो इफ आई डू array, how can I access kiwi? How can I access kiwi? If I write array 1, will I be accessing kiwi? Kiwi access कर रहा हूँ, right? All you have to do is you have to access that element and you have to assign it a value, right? So I have accessed array 1 और उसको मैं value assign करता हूँ pineapple, right? तो हम उसको अपडेट करने से पहले एक बार एरे प्रिंट करेंगे और हम उसको अपडेट करने के बाद एक बार एरे प्रिंट करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। ठीक, इफ आई डू अ नोड इंडेक्स, यू विल सी कि अभी के लिए द एरे हैड ऑरेंज, कीवी, मैंगो, बनाना, बट एक बार हमने उसको अपडेट कर दिया तो वी आर प्रिंटिंग ऑरेंज, पाइनएप्पल, मैंगो, बनाना। ठीक, एप्लीकेशन, लेट्स से कि वी हैव एन एरे ऑफ पासवर्ड, तो पास एरे। ठीक, और उस पासवर्ड में दिस इज पासवर्ड 1, दिस इज पासवर्ड 2 and this is password 3 and you have to update the password number 2. So how will you be updating password number 2 with password number 4? चैट में लिख के भेजो फटाक से। We have to update password number 2 with password number 4. Update, not add. राहुल, अपडेट करना है, करेक्ट? Correct. So all I have to do is I have to do a array, I have to do a 1 and उसमें I'll be doing password 4. Will this be giving us the correct result? No, right? Array का नाम correct लिखना है. We'll have to write password array. Now we'll be updating the array. ठीक? So yes, that's how we update an array. Any doubts in how you can update an array? Anything? No doubts? ठीक है. Let me tell you one thing quickly. अभी तक हमने क्या देखा? We were storing strings in that array. Let's say if I store, if I write an array where array equals to 1, 2, 3, 4, 5. Will this be legal? चलेगा क्या? Can I do this? I can store numbers, right? What if I stored true, false, true, false? Is this something that we can do in JS? Right? So most languages में you can store one kind of data type at once in an array. But given that JS is a strictly or loosely type, क्या है?
if you guys remember it, loosely type. So we can actually store anything in array, right? From string to number to boolean, anything. ठीक? So if I go and if I console.log array, please tell me कि I am gonna get an error. Do you guys agree with me कि error आने वाला है? I mean, एक elements update करना, that's fine, but I'm literally using the same name again. Is this something we can do? Let's see. If I go and if I do a node index, I'm printing the last string. Is this exactly similar to reassigning the value on variable? क्या हम array update कर रहे हैं कि सीधा variable update कर रहे हैं? Right? So people, this is gonna be exactly fine. ठीक? अभी बताना. बोलो. Is this fine? What am I gonna print in console.log array? The string. Okay. Let me write a node index. I'll be writing the string. ठीक है? तो don't get confused. दो कॉन्सेप्ट अलग है. पहला कॉन्सेप्ट क्या था? लेट मी क्विकली क्लियर दैट. पहला कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे कि अगर हमारे पास एक एरे है, लेट्स से दिस वन एरे 1 2 3 4 एंड 5, और हमने एरे 1 पकड़ा और उसको वैल्यू दे दी 6, तो विल बी अपडेटिंग द फर्स्ट एलिमेंट 2 को हटा के आई विल बी राइटिंग इट एज 6. ठीक, ये होने के बाद विल बी राइटिंग दैट एरे एज 1 6 3 4 5. बट अगर मैंने वेरिएबल ही पकड़ा और उसको अपडेट कर दिया 5 से, तो नाउ आई विल बी एक्चुअली, इफ आई डू अ console.log ऑफ array, आई एम जस्ट गोना गेट 5. ठीक, दो अलग चीज है. क्लियर? नो, array डज नॉट हैव एनी डेटा टाइप. देखो, तो इन JS, गिवन दैट वी नो कि JS हमारा लूजली टाइप लैंग्वेज है, तो हम एरे में ना कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं. हम स्ट्रिंग भी स्टोर करेंगे, साथ में वी कैन स्टोर नंबर, वी कैन स्टोर नॉट ऑब्जेक्ट, वी कैन स्टोर बूलियन, एनीथिंग, कोई भी डेटा टाइप वी कैन स्टोर इट इन. बट वही इफ यू आर गोना डू इट इन C++ और जावा, राइट, द स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज, उधर नहीं कर सकते हो. यू हैव टू ईदर स्टोर ईदर स्ट्रिंग्स इन दैट एरे, या फिर नंबर, या फिर बूलियन. ठीक, तो विद JS वी गेट दिस फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक, क्लियर है? एनी डाउट्स? नो डाउट्स, वेरी क्लियर एवरीथिंग. काफी कुछ थ्रो कर दिया था एकदम से, बट हाँ, इजीली थ्रो किया. चलो, लेट्स सी इफ यू कॉट इट एवरीथिंग. लेट्स से कि हमारे पास एक एरे है, राइट. दिस वन इज 1 ट्रू फॉल्स uh, 5, right? If I console.log, of course we know कि it's not gonna give an error, it's just gonna print that array print हो जाएगा. Let me do a quick clear. If I do node index, we are gonna get that array. Tick. Now let's say I did this array 2 equals to false. Any change that we are gonna see in our array? Right? जो सेकेंड एलिमेंट है, इज इट अ बूलियन और इज इट अ स्ट्रिंग? इट्स अ स्ट्रिंग एंड वी आर चेंजिंग इट टू अ बूलियन. ठीक, तो यस, वी आर अपडेटिंग दैट एरे. अगर मैं अभी एरे प्रिंट करूं नोड इंडेक्स, वी आर गोना गेट इट इन दिस मैनर, राइट? डिफरेंस दिख रहा है. जब स्ट्रिंग है तो यू राइटिंग इट लाइक दिस, व्हेन इट्स बूलियन यू राइटिंग इट लाइक दिस. क्लियर? नाउ let's say कि I wrote this. What am I gonna print? And I need everyone to answer. 58 आंसर होंगे तभी मैं एंटर करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करने वाला एंटर. राइट?
पूरा का पूरा वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, राइट? तो ये चीज एकदम प्रॉपरली हट जाएगी एंड देयर विल बी जस्ट अ ट्रू स्टैंडिंग देयर वेयर डू एन एंटर, सिर्फ ट्रू प्रिंट होगा। क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर टू यू गाइस। चलो ग्रेट। तो इट्स समथिंग दैट यूजुअली कंफ्यूजेस पीपल, तो मैंने पहले ही उसको आपको समझा दिया, तो यू आर नॉट गोना गेट कंफ्यूज। यस, इट विल बी। विदाउट ब्रैकेट प्रिंट करना है, इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो यार विदाउट ब्रैकेट प्रिंट करने के? सिखाएंगे, अभी के लिए इतना सीखो ना। फॉर नाउ अभी विदाउट ब्रैकेट एरे प्रिंट कहाँ करोगे? ठीक है, पहले इतना कवर कर लेते, पहले बेसिक्स कवर कर लेते, फिर देखते। ठीक, मल्टीपल चेंजेस आई शो यू, आई शो यू। आई मीन मल्टीपल, अगर एक साथ पूरा एरे चेंज करना है तो वी कैन गो फॉर अ लूप। दिखाऊंगा कैसे लूप कैसे चलाएंगे एरे। फॉर नाउ हमने कवर कर लिया कि एरे बनाना कैसे है, एरे का एलिमेंट अपडेट कैसे करना है। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एरे डॉट लेंथ। ठीक, लेट्स से कि मेरे पास एक एरे है, वेरिएबल एरे, and this contains again username. So let's say user 1, we have user, of course user 2, we have user 3, we have user 4। ठीक, इस एरे का लेंथ आपके हिसाब से कितना है? What do you guys think? 3 4 3, राइट? एलिमेंट्स जितने हैं उतना इसका लेंथ है, तो 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ठीक, इंडेक्स के साथ एक बार मैप करके देखें, तो इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? एवरी टाइम एनी एरे विल इट बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो 0 के साथ कौन आएगा? यूजर 1, यस यस। देन 1 के साथ क्या आएगा? यूजर 2, 2 के साथ क्या आएगा? यूजर 3 एंड 3 के साथ क्या आएगा? यूजर 4। राइट, राइट। ठीक है, why I did this I'll show you shortly, but अभी के लिए एरे का लेंथ है 4, इसमें 4 एलिमेंट्स है, राइट? तो इफ आई गो इन हियर कंसोल डॉट लॉग, देयर इज अ इनबिल्ट फंक्शन जिसको बोलते हैं डॉट लेंथ, राइट? ये लिखने पे दिस डॉट लेंथ इज गोना गिव कि इस एरे में कितने एलिमेंट्स है या फिर इसका लेंथ कितना है। इफ आई डू अ नोड इंडेक्स यू विल सी कि इट्स टेलिंग मी 4। ठीक, अभी बताना अभी क्या प्रिंट करेगा? व्हाट विल इट बी प्रिंटिंग पीपल? 5 5। if I do a node index it's printing 5। तो इज इट क्लियर कि एरे डॉट लेंथ क्या कर रहा है? अंडरस्टूड? ठीक, तो एक चीज ध्यान रखना, लेट्स कीप इट इन अ बकेट। अभी तक हमने इनबिल्ट फंक्शन नाम सुन रखा है, और इनबिल्ट फंक्शन में हमने कुछ फंक्शंस पढ़ रखे हैं, जैसे कि टाइप ऑफ एनीथिंग एल्स दैट आई टोल्ड यू गाइस टू लर्न। कुछ और याद करने या पढ़ने के लिए बोला था मे बी, राइट? 2 लोअर केस याद है, 2 लोअर केस, 2 अपर केस, याद है, याद है, याद है? ठीक, ठीक, स्क्वायर रूट फाइन, बट लेट्स गो विद डॉट लेंथ, राइट? तो दीज आर फ्यू इनबिल्ट फंक्शंस जो कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। विल बी जस्ट यूजिंग इट एज अ सिंटेक्स। हम कॉन्सेप्ट में जाएंगे कि फंक्शंस होते क्या है शॉर्टली इन नेक्स्ट 2-3 क्लास, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि वी कैन डू अ डॉट लेंथ एंड इट विल गिव अस द लेंथ ऑफ दैट एरे। क्लियर? अच्छा, तो इफ आई गो एंड इफ आई सी कि इज द एरे डॉट लेंथ, मतलब एरे का लेंथ अभी 5 है, राइट? लेट्स मैप द लास्ट एलिमेंट। तो लास्ट एलिमेंट विल बी मैप समथिंग लाइक 4 is equals to user 5। तो is the length and the final index matching? Can I write something like this? Console.log, no, not like this, print नहीं करेंगे, let me write it as array.length, vaguely लिखता हूँ, is equals to last index। Can I write this? Ever? Okay, तो अच्छा, you guys tell me, is this statement true? That statement is not true, right? Array dot length कितना है? It's 5
and last index is it's 4, right? Are they equal? No, but अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, if I do a 5 minus 1, will this be equal now? Right? So if I do a array dot length minus 1, it's gonna be equal to last index. Can I say that? Yes. So if I do array dot length minus 1 and if I do a node index, you will see कि हम लोग last वाला index print कर रहे हैं. इतना सब क्यों बताया अभी बताना. If I do this array and इसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको नंबर ही लिखना है, राइट? यू कैन राइट अ वेरिएबल इन इट टू. ठीक, बस उसके पास एक वैल्यू होनी चाहिए जो कि नंबर होनी चाहिए. तो लेट्स से कि इफ आई डू array dot length minus 1, is it a number? Is this bracket giving a number? Finally 4 दे रहा है, राइट? तो what should I be printing now? User 5. Correct. If I do a node index, I'll be getting user 5. If I do length minus 2, क्या प्रिंट करूंगा? user 4, length minus 3, user 3, right? Let's say if I go length minus 5, अभी हमें एरर मिल रहा है. ठीक, तो वी आर गोना यूजुअली यूज लेंथ माइनस 1, ये बहुत यूज होने वाला है. बट फॉर नाउ इज दिस क्लियर कि array dot length and the last index? Understood? They are not equal, but if you do array dot length minus 1, then you can make it equal to last index. Everyone is it clear? ठीक, चलो, तो that's something that we have to cover. अभी चलो, let's do one thing. First explain the, okay, I'll explain it once again quickly. So we have array, इसका लेंथ कितना है? What's the length of this array? Length कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके अंदर? 5, राइट? एंड अगर मैं उसको इंडेक्स के साथ लिखूं तो इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? एवरी टाइम फॉर array 0 से, राइट? तो विल बी मैपिंग इट समथिंग लाइक दिस. 0 इंडेक्स पे यूजर 1 जाएगा एंड यूजर 5 विल बी गोइंग ऑन 4, राइट? तो बाय दैट लॉजिक कैन आई एवर से कि array dot length is equals to last index ever? No, right? Whereas अगर मैं बोलूं कि array dot length minus 1 is equals to last index, will it be true every time? Right? तो बस इतना ही था. That's all. ठीक है, चलो. Now अभी let's say कि एक ही यूजर नहीं है. We have, let me keep it there only. Just let me comment this out. This out, and in here we write this, right? So let's say कि in this array I'm in process of adding more user. ठीक, और users add कर रहा हूँ. तो we'll be adding user 5, user 6. तो is it fine कि I'll be writing it, or should we make something which automatically adds it in array? Could that be an option? Yes. So again I'll be taking help of an inbuilt function that is called push. Push का मतलब क्या होता है? पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना. और इंसर्ट, धकेलना, धक्का देना. करेक्ट. तो what we'll do is, let's say कि I have a variable n user या फिर new user, right? And his name is user 6. Very predictable, but yes. And I have to dhakelna this user inside this array. What I will do is, I'll do array dot push brackets, और brackets के अंदर जो भी user को push करना है. So I'll write n user and then I'll do a console dot log array. तो push करने से पहले user को और push करने के बाद let me quickly print it and let's see what is happening.
तो if I do node index, you will see कि initially where is the array? इसको नीचे ही रखते, it's not actually looking good. Let's keep it at bottom and I'll just keep on scrolling. Chalo. So we can see two arrays. First one is from this to this. So we have user 1 to 5. But once we have pushed the user, then we can see कि we have user 1 to 6. Clear? तो starting में add किया कि last में add किया? In that array, starting में add किया, right? So that's gonna be the thing of push. It's always gonna add in starting. ठीक? हमेशा starting में add करेगा. तो let's say कि I have any user 2. ठीक? एक और user है and of course his name is user 7. How can I do it? अभी कैसे करेंगे push? Please write in chat and show me. Correct? Anything else? Right? Correct, people. So if I do array dot push and in this I write n user 2 and then I print this array, will I be printing the array with both the users? नए users के साथ दोनों print करेंगे, right? If I do a node index, I'll be getting the first array with user 5 and then the second array will contain both the user 6 and 7. Understood how you can add elements to this array? For now, this addition is insertion actually. Insertion one dimensional है. One dimensional कहने का मतलब for now you can just add it at the last. Right? अभी के लिए सिर्फ last में add कर रहे हैं. When we'll be covering functions, जब एक बार functions पढ़ा दूंगा ना, then we'll be going for advanced inbuilt function. और उनमें I'll show you how you can add it in between if you want. ठीक? For now we know a way of adding something in array by array dot push. Understood, guys? समझ आया? Any doubts how you can add elements to array or rather insert? Better word insert रहेगा हमेशा. Clear everyone? कोई भी doubts? Just for adding an array. उसी तरीके से let's say I have to remove the last element, right? Again one dimensional. For now we won't be going to do something between. Again उसका थोड़ा advanced concept है, but for now let's remove something from end. ठीक? So what we'll have to do is we'll have to write array dot pop. ठीक? एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ. अच्छा, I'll show you, ये बाद में दिखाऊंगा. Let me do it. यहाँ पे if I do array dot pop और इसके अंदर जस्ट आपको ब्रैकेट्स लिखने हैं. पॉप करना है तो you don't need to provide it anything. बस लास्ट वाला एलिमेंट पॉप आउट करना है. तो पॉप करने का मतलब समझते हो? राइट? जस्ट निकाल दो. राइट? पॉप इन का है ना, जस्ट टेक दैट फर्स्ट एलिमेंट एंड निकालो. इफ आई डू और नोड इंडेक्स, अभी देखो एरे की शक्ल, फिर देखो कि हमने लाइन नंबर 144 पे क्या लिखा है और फिर बताओ क्या प्रिंट करने वाले. कितने यूजर प्रिंट करने वाले? 5 तक, 6 तक, 4 तक. करेक्ट करेक्ट. इफ आई डू एंटर, हम सिर्फ 4th यूजर तक प्रिंट करेंगे. राइट? तो लेट्स से कि आई डू पॉप एंड आई कॉपी दिस स्टफ. आई कॉपी दिस और यहाँ पे मैंने ये कर दिया. अभी बोलो व्हाट्स गोना हैपन. काउंट द पॉप्स एंड टेल मी. सिर्फ यूजर 1 तक. यस. इफ आई डू दिस ओनली यूजर 1, array dot pop. अब बोलो 5 बार पॉप कर दिया. खाली हो जाएगा एरे. राइट? तो इफ आई डू अ नोड इंडेक्स, अभी ये खाली हो गया. मान लो एक और बार पॉप लिख दिया गलती से, तो जेएस बोलेगा बस कर भाई, काफी है. ठीक? तो वहां पे इट्स जस्ट गोना गिव योर ब्लैंक.
ठीक है, चलो तो आई मीन वी आर पॉपिंग इट बाय आवरसेल्फ, खुद कर रहे हैं. इमेजिन इफ यू आर एबल टू रन अ लूप ऑन दिस array डॉट पॉप, राइट, 5 बार इसे पॉप करा देते तो वी वोंट हैव टू राइट इट दिस मच. ठीक, तो इज इट क्लियर टू एवरीवन कि एरे में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो हाउ यू डू इट, एंड लेट्स से यू हैव टू पॉप इट, हाउ यू डू इट. अच्छा, quickly answer me something. Let's say I have an array, right? And in this, I have one, I have str. I do array dot push true. I do array dot push 23. I do array dot pop. I do array dot push 34. I do array dot pop. I do array dot pop. And if I console dot log array, कंसोल में दिख रहा था ना एरे कैसे दिखता है, एग्जैक्टली उसी तरीके से एक बार चैट में लिख के बताओ तो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, एंड आई वांट एवरीवन टू राइट इट. अगेन पॉप इज गोना पॉप फ्रॉम एंडिंग, राइट, एंड में से हटाएगा फ्रॉम द लास्ट. एज आई टोल्ड, वन डिमेंशनल है. ठीक, लास्ट में ऐड करेगा, लास्ट से हटाएगा. ओके ओके, ठीक है. तो लेट्स सी व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग टू एरे. जब मैंने एरे डॉट पुश ट्रू किया तो क्या मेरा एरे ऐसा कुछ दिखेगा, str true, will it be looking something like this, right? Then we are again pushing something, right? फिर से पुश कर रहे हैं तो क्या मेरा एरे ऐसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा. यस लिखने से पहले एक बार एरे देख लेना. नहीं, राइट, लास्ट में जुड़ेगा, लास्ट में जुड़ेगा. वी नो दैट नाउ, वी नो दैट नाउ. Sure, so let me add it in last. Will it look something like this? Yes, yes. Then what we are doing is we are basically popping it. So I'll write 1 comma str, I'll write a true, and that's it. 23 pop out, गए, बाहर निकल गए. ठीक, then again I'm doing a push. So what I'll do, I'll write an str, I'll write a true, I'll write a 34. Yes, yes. Tick. And then again we are popping something out, so I'll be writing 1 comma str comma 2, that's it. And then finally हम क्या कर रहे हैं, we're writing 1, we're writing str comma, बस that's it. True, गया, टाटा, खत्म, बाय बाय. Yes, it's removing from end. Clear how we are getting 1 and str, just the original string. तो क्या देख के समझ आ जाता है कितनी बार पुश किया है हमने, 3 बार पुश किया है. एंड हाउ मेनी टाइम्स डिड वी पॉप्ड इट आउट, 3 टाइम्स. तो दोनों एक दूसरे को इवन कर दे रहे, राइट, राइट. तो इट्स प्रिटी डिसेंटली क्लियर व्हाट्स गोना हैपन. एंड लेट मी राइट इट इन हियर, पुश एंड पॉप will add and insert and remove elements in the array respectively. क्लियर, आपके लिए छोटा सा नोट्स भी बना लिया. अभी तक क्लियर है पीपल? नो, फॉर नाउ वी कांट, आई मीन वी कैन पॉप any index in JS, yes that's possible. For now with just array.pop it's not. अभी के लिए आपको मैंने सिखाया ही नहीं. ठीक, तो for now you can just remove elements from the last. ठीक, that's how you remove it. I'll teach you, बाद में सिखाऊंगा जब inbuilt function, actually we'll be talking about functions, so I'll be teaching you there. But if you guys are curious, you can go and I won't be writing it, you can go and check a function that is called splice. ठीक, अगर टाइम मिले तो. चलो, let's do one thing, let's give you guys a break of 2-3 minutes and then let's get back, right? तो चलो 9-12 पे सब वापस आओ, चलेगा? ओके, डन.
हाँ जी, आ गए आप लोग? एवरीवन हेयर, प्लीज हाजिरी लगा दो, वन प्लीज, वन इन चैट, अटेंडेंस गाइस। ग्रेट, ग्रेट। एंड क्विकली साथ ही साथ टेल मी कि एनी डाउट स्टिल नाउ इन लेक्चर, एरे में कोई भी डाउट? राइट, तो हमने क्या क्या कवर किया? हमने पहले समझा कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर और डेटा स्ट्रक्चर चाहिए ही क्यों था। आई होप दैट्स क्लियर कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों चाहिए था। आज के लिए जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में है दैट इज एरे। वी लर्न कि हाउ वी क्रिएट एन एरे, how we assign value to it, how we access the value, how we can update the value, and one dimensionally we learned how we can insert and delete something. Is that clear? Clear? तो चलो अब अपना काम थोड़ा सा और आसान बनाते हैं, राइट? हाउ? लेट्स सी। तो where is that user array? That's may help me a lot. Let me get this thing. I'll do a and is it visible कि I should zoom out a bit the code, everyone? Visible है? ठीक है, थोड़ा मेरे को भी लिखने में आसान रहेगा। चलो, तो we have these many users, right? Let's say कि I have to print all users. आप क्या बोलोगे रितेश? जाके सीधा console.log array लिख दो, राइट? फिर मैं बोलूंगा कि नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, right? What do I mean? If I do an index, I should be printing it like a separate entity. एरे का हिस्सा नहीं। ओके, I'll zoom it. चलो, एरे का हिस्सा नहीं, एज अ सेपरेट एंटिटी। तो लेट्स से कि आई क्रिएट अ वेरिएबल जिसको बोलता हूं मैं इंडेक्स, राइट? एंड आई कॉल इट 0। तो इफ आई डू अ console.log index, will I be printing the first element? People, everyone, will I be printing the first element? Yes or no in chat please, ताकि मुझे पता चले what's going in your brain. Will be printing it, right? Index finally it's gonna give us 0, right? If I do a index, हम पहला वाला element print कर रहे हैं। Let's say कि I did something like this, और उसके बाद I wrote console.log array, but still index ही लिख रहा हूं। What are you guys guessing? क्या print हो रहा है? What are we expecting actually? Just user2 और user1 and user2? user1 भी console करेगा, right? तो we're printing the user1 with index 0। उसके बाद लाइन नंबर 180 में we did a index plus plus, and then finally we are printing this, ठीक? Let's see what it is actually doing. So it's printing user1 and user2. Now can I print the entire array this way? कर सकते हैं क्या? तो if I do a index plus plus and if I do a console.log and if I do this, इस तरीके से can I print the entire array, right? But is it too much repetitive? क्या हमने कोई ऐसी टेक्निक सीखी है जो कि रेपिटेटिव टास्क को एक लाइन में खत्म कर दे, या मे बी 2-3 लाइन, बट हाँ इजीली खत्म कर दे? लूप, राइट? क्या लूप की चीज क्या क्या कॉमन है? एक तो रिपीटेशन हो रहा है, प्लस वी आर एडिंग समथिंग। तो लेट्स से कि आई कमेंट दिस थिंग आउट एंड आई राइट अ व्हाइल। एक बार व्हाइल लूप लिखता हूँ, बाकी हम लोग यूज फॉर लूप करेंगे, इट्स मोर इजियर टू यूज, ठीक? तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट अ व्हाइल इंडेक्स हमेशा इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, राइट? अगर हम 0 नहीं लिखेंगे तो विल नॉट बी एबल टू एक्सेस user1। विल स्टार्ट विद 0। कहां तक चाहिए? If index is equals to array dot length, should we stop there? 4 तक चाहिए, राइट? 4 तक चाहिए। तो we'll be doing array dot length -1। तो while index is less than array dot length, this will be true, or array dot length less than or equals to array dot length -1, दोनों चलेगा।
ठीक, तो लेट्स गो विद द इनिशियल वन। ठीक, लैटर वन बाद में यूज करेंगे, अभी के लिए लेट्स यूज दिस। इफ इनसाइड दिस आई डू अ कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स, विल आई बी गेटिंग ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स प्रिंट करूंगा? नो नो, दो गलतियां हो रही है। क्या क्या हो रही है? ओके, वन इज इंडेक्स प्लस प्लस, वी आर नॉट इंक्रीमेंटिंग द इंडेक्स, एंड वी आर प्रिंटिंग द इंडेक्स। एलिमेंट नहीं प्रिंट कर रहे हैं, वी आर प्रिंटिंग द इंडेक्स। एलिमेंट प्रिंट करने के लिए विल हैव टू राइट दिस, रिमेंबर रिमेंबर। if I do index plus plus, now is the code correct, looking good, right? Right. If I do a node index, we will be getting all the 5 users, सारे के सारे यूजर्स को वी आर कैचिंग एंड प्रिंटिंग। इज इट क्लियर एवरीवन, क्या चल रहा है? राइट, टेल मी व्हाट्स गोना हैपन इफ आई डू array dot push user 6, array dot push user 7, अभी क्या होगा? विल आई बी प्रिंटिंग टिल 7 या फिर array dot length 5 ही है? तो एज सुन एज आई पुश समथिंग इन दिस एरे, उसका लेंथ अपने आप अपडेट होता जाएगा, तो इट विल गो टिल 7। I'll be pushing this stuff and I'll be printing all of these things, right? तो user 1 से 7 तक we are printing it. ठीक, let's say कि I want you guys to print the value and their respective index, right? तो याद है ऐसा कुछ लिख रहे थे हम लोग, 0 user 1 ऐसा। तो मेरे को एक्चुअली ऐसा टर्मिनल पे चाहिए, कैसे करेंगे? एनी गेस, एनी आइडिया, एनी थॉट्स? concatenate, we can concatenate it, right? So we can go with this, we can क्या करेंगे हम लोग? Let's go with index, then I'll do a plus, एक space, then again plus, we'll be adding this, then again plus, एक space, and then again plus. Are we concatenating this? Is this thing looking something जो कि आपको समझ आ रहा है? ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? Right? And tell me, will I be getting everything like this? इस तरीके से दिखने वाला, right? If I do a node index, we'll be saying कि 0 1 user and everything is looking nice. Understood? अब आपका एक छोटा सा काम है, ये तो मैंने while loop में लिखा है, इसको कन्वर्ट करो for loop में। लेट्स से कि आपको मैं 22 तक टाइम दे रहा हूँ, 9:22 तक, तब तक आप प्रिंट करो, लिख के दो मेरे को फॉर लूप का कोड जस्ट फॉर दिस थिंग, यही चीज करना है। आई शेयर दिस इन चैट ताकि आपको इतना बड़ा लिखना ना पड़े, एंड प्लीज राइट इट एवरीवन। मैंने चैट में शेयर कर दिया, बस उसको उठाओ, प्रिंट करो, बट आई नीड अ फॉर लूप। 22 तक आपके पास टाइम है। Yes, convert it into a for loop. Correct, correct. Jyoti, correct. Rohit, correct. I can see you guys are doing well. Sheikh, Devan, correct, everyone. Okay, this. ठीक है, अब इन्फ्लक्स थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ऑल राइट। तो एवरीवन इज डूइंग करेक्ट, वी कैन गो विथ फॉर। मैंने वेरिएबल इंडेक्स से बनाया था, राइट? यू कैन गो विद एनीथिंग। तो लेट्स से कि आई क्रिएटेड अ वेरिएबल, राइट? आई रोट i इक्वल्स टू 0, i is less than or equals to array dot length -1. I did I plus plus, and inside this I will just console dot log this thing,
Will I be printing everything? Yes. Yes, एक बार देख के बोलो, एक बार कोड ध्यान से देखो फिर बोलो. No, right? छोटी सी मिस्टेक हो रही है. What's that? Index, right? It's not index, it's I. I है. ठीक. Now if I do this, I'll be getting that, right? यहाँ पे 0 0 दिखा रहा है. We'll need to do this as index 2, right? अभी we should be getting properly. ठीक. तो 0 से लेके 6 तक, user 1 से लेके user 7 तक. Any problem in understanding anything, guys? बताओ अभी. No doubts. Everything is crystal clear. Everyone. ठीक. बेसिकली कॉन्सेप्चुअली इतना ही करना था. विल बी सॉल्विंग अ फ्यू प्रॉब्लम्स. कुछ आप बताओगे, कुछ मैं करूंगा. ठीक है. तो लेट्स ट्राई टू डू दिस स्टफ. ठीक है. लेट्स से वी आर क्रिएटिंग अ सिस्टम. ठीक. एक सिस्टम बना रहे हैं. उसमें उसमें लेट मी गेट दिस. वी हैव अ एरे जिसमें हम यूजर नेम स्टोर कर रहे हैं. अच्छा, क्रिस्टल क्लियर नहीं है क्या? क्रिस्टल क्लियर नहीं है, बताओ. कर देते क्रिस्टल क्लियर. लेंथ. अच्छा, लेंथ. सिर्फ लेंथ का कॉन्सेप्ट कि लेंथ और इंडेक्स का कॉन्सेप्ट? बिकॉज आई थिंक दैट्स द समवेयर कंफ्यूज हो गए. मे बी बोथ. ठीक है. ठीक है. अभी के लिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइस, जस्ट गिव मी 2 minutes. आई विल गेट योर फेलोज डाउट क्लियर एंड देन विल मूव ऑन. अगर मैं एरे डॉट लेंथ लिखता हूं, हमारे पास ये एरे है. एलिमेंट्स काउंट करके बताओ व्हाट एम आई गोना प्रिंट. 5, राइट? अभिजीत, क्या प्रिंट करूंगा? 4 की 5? आराम से कैलकुलेट करो. एंड आई नीड योर आंसर. 5 है ना? 5 प्रिंट करेंगे. बट अगर मैं इंडेक्स बोलूं, यूजर 5 का इंडेक्स क्या है? व्हाट यू विल यूज से? इंडेक्सिंग विल बी गोइंग 0th पे हमारा यूजर 1 रहेगा, राइट? 1 पे हमारा 1 रहेगा. मैं ऐसे लिख रहा हूँ. नो, 1 पे यूजर 2 रहेगा. 2 पे यूजर 3 रहेगा. 3 पे यूजर 4 रहेगा. एंड 4 पे यूजर 5 रहेगा. ऐसा कुछ होगा इन केस ऑफ इंडेक्सिंग. यस. यस. तो कैन आई से कि बाय दिस लॉजिक एरे डॉट लेंथ इक्वल्स टू इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स एक्चुअली. क्या ये चीज ट्रू होगी? मतलब कंसोल में तो नहीं होने वाली, बट ऐसे ही जस्ट फॉर योर रेफरेंस. इट वॉन्ट बी, राइट? बट वहीं अगर मैं ये लिखता हूं तो नॉट दिस सॉरी, ये दिस विल वर्क. विल इट बी ट्रू ना? राइट? इंडेक्स लास्ट 4 है. व्हाट वी आर डूइंग इज उसमें 1 प्लस कर रहे हैं, तो ये हो जा रहा है 5. ठीक. मान लो अगर मैंने इसमें एरे डॉट पुश भी किया कुछ, तो अभी इंडेक्स में 5th पे आ जाएगा 2, राइट? बट लेंथ भी तो बढ़ गई, तो लेंथ हो गया 6. अब 5 + 1 6. इज इट क्लियर? राइट. चलो, दैट पार्ट इज क्लियर. नाउ लेंथ का एक और बार यूज हुआ है. लेट मी गेट दैट थिंग कवर्ड. लेट्स से कि हमें 1 2 लेंथ तक प्रिंट करना है, राइट? और लेंथ एरे का है 12. ठीक. फॉर योर रेफरेंस 12 है. ठीक. आई विल बी राइटिंग फॉर. मान लो मैंने वेरिएबल को बाहर इनिशियलाइज किया. ठीक. आप यहाँ पे भी कर सकते हो, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन. बट यहाँ पे भी कर सकते हो. तो लेट मी डू इट इनसाइड वंस. I'll do variable I equals to 0. I is less than. Will I be doing array dot length? चलेगा? अगर मैंने array dot length
-1 किया होता तो क्या हम 1 से 12 प्रिंट करते? नहीं, तब हम 1 से 11 तक प्रिंट करते हैं, 11 तक प्रिंट करते हैं। अगर हमें 1 से 12 तक प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, लेस ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल्स। क्लियर? तो बस इतना ही यूज हुआ है लेंथ का। अब क्रिस्टल क्लियर है? ठीक, चलो, तो दैट्स प्रीटी मच इट। अभी आई वाज ट्राइंग टू टेक एन एग्जांपल, दिस थिंग, इसका नोट्स ऊपर है तो प्लीज रेफर दैट। ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो वी हैव यूजर नेम इन आवर सिस्टम। इज इट पॉसिबल कि यूजर नेम के साथ पासवर्ड भी होता है? चाहिए रहता है क्या पासवर्ड लॉगिन के लिए? राइट, राइट, पासवर्ड भी चाहिए। तो लेट्स से कि आई एम क्रिएटिंग, इसको नाम देते हैं एरे यूजर, राइट, एंड इसको देते हैं नाम एरे पासवर्ड। ठीक, चलो, तो इन दिस वी आर स्टोरिंग password 1 very creative, password 2, password 3, password 4 and password 5। ठीक, तो लेट्स से कि मुझे पासवर्ड और यूजर नेम जो भी है दोनों साथ में प्रिंट करना है। आई हैव टू कंसोल इट समथिंग लाइक दिस। स्ट्रिंग में ऐसा होना चाहिए, यूजर नेम इक्वल्स टू यूजर यूजर 1 and password is equals to password 1। Can we do this? Is this possible? I mean, of course we can do it, डेली करते हैं, बट अभी जितना हमने सीखा है उससे पॉसिबल है क्या? You can see yes. Okay, let's say I have an index, right, where index equals to 0। ठीक, if I do a console.log array user index, will I be printing the first element of user 1? Yes, but exactly by that concept, do you know कि हर एक एरे का इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होता है? यस और नो, यस और नो। तो अगर मैं यहाँ पे इफ आई डिड समथिंग लाइक दिस, एक स्पेस ऐड कर देता हूँ फॉर नो, एंड if I write array password index, will I be printing, I missed a plus, chalo, so will I be printing the first username and first password? देख के बताओ आराम से, right? Because index is gonna be same, that we know. If I do a node index, हम user 1 और password 1 print कर रहे हैं, तो if I run a loop on this, can we go for each and every username and password? Yes, if I do a for where I equals to 0, I is less than, given that दोनों के दोनों array same है, तो अगर मैं कोई भी एक array पकड़ लूं, array user, चलेगा क्या पासवर्ड के लिए भी वो array, given that लेंथ सेम है, लेंथ सेम है। ठीक, ये कंडीशन मैंने दे रखी है, फॉर श्योर कभी भी ये दोनों चीज सेम रहेगी। वी कैन गो फॉर एनी ऑफ दिस, राइट। इनसाइड दिस बस जाके लिखना है console.log यूजर नेम इक्वल्स टू प्लस एरे यूजर आई, ठीक, प्लस दिस प्लस दिस, नॉट दिस, एंड पासवर्ड। थोड़ा बड़ा बड़ा कॉन्केटेनेशन हो गया, एरे पासवर्ड। आराम से देख के बताओ नाउ, विल वी बी प्रिंटिंग इट इन दिस मैनर, एवरी यूजर नेम एंड पासवर्ड? नो, यस, ओके, यस, यस, let's see if I write a quick clear, if I write a note, so we are not printing, why?
आई क्या मिसिंग? आई इज लेस देन एरे डॉट यूजर डॉट लेंथ, बताना पड़ेगा कि कहां तक आपको जाना है, ठीक। तो इधर यू कैन गो विद दिस, या फिर इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो। तो लेट्स से कि आपने वेरिएबल वैर नहीं, बहुत वैर यूज कर दिया, लेट्स गो विद लेंथ, राइट। हमने एक वेरिएबल लेंथ बनाया और उसमें ये स्टोर कर दिया, ठीक। तो बस आपको यहाँ पे लेंथ लिख दो एंड वी शुड बी गुड टू गो, ठीक। वी आर प्रिंटिंग ईच एंड एवरीथिंग इन अ नाइस लुकिंग फैशन, सॉर्ट ऑफ, एट लीस्ट, ठीक। हाँ दैट्स चलो, तो अभी ठीक है। इफ आई डू नॉट इंडेक्स, अभी ठीक है, क्लियर, इजी है एरे, इज एरे इजी टू यूज, राइट। चलो देखते हैं, देखते हैं। तो लेट्स से कि आई हैव गिवन यू अ var array with some numbers 12, 15, 13, 17, 19 and 45। मैंने आपको बोला कि यूज अ फॉर लूप फॉर दिस array and print the sum of all elements, सारे एलिमेंट्स का सम प्रिंट करो। इज दैट समथिंग वी कैन डू? ओके, तो लेट्स ट्राई टू डू इट, एवरीवन ट्राई करो एक बार। Yeah, we have to do something like that, but can we write a code for this? तो हमें क्या करना है, हमें 12 प्लस 50 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 45 प्रिंट करना है, इसका जो भी फाइनल आंसर। ओके, टेक योर टाइम, 2 मिनट लो, बट थिंक एंड राइट। और अगर लिख लिया तो शेयर भी कर देंगे चैट में। ओके ओके, सीम्स फाइन करण। सम सीम्स फाइन, ज्योति करेक्ट, राहुल करेक्ट, आराम से, कोई जल्दी नहीं, आपके पास और 2 मिनट है, बट आई नीड एवरीवन टू राइट। I don't think this one will work. Correct, Rohit. ठीक, most of you guys are able to do it. Shall I do it now? मैं करूँगा? अरे बाप रे see the final. Okay, that works, but उस तरीके से करना नहीं है भाई, फैसला लूप यूज करना है, ठीक है। I mean that will work, but loop यूज करना है। चलो, what we'll do is we'll create a variable, right? हम एक वेरिएबल बनाएंगे sum, right? We'll keep it 0 and in this we'll run a loop। हम क्या करेंगे, we'll be running a loop where I for I equals to 0, I is less than array dot length I plus plus। In this what I will do is I'll do sum plus equals to array का element and then I will finally print console.log sum। Quickly tell me, should this sum be outside of the loop or inside of the loop? आउटसाइड, राइट। अगर इनसाइड रहेगा तो क्या होगा, इट विल प्रिंटिंग द लाइव सम, हर एक इटरेशन पे सम की वैल्यू क्या हो रही है वो प्रिंट करेगा। तो इफ आई गो फॉर दैट, इफ आई डू अ नोड इंडेक्स, यू विल सी it is starting from first index to 12, then it's going for second index to 12 plus 50, that is 62, then we are going for 13 to, so finally 75, 92, 111 and this will be 156। हमें फाइनल सम प्रिंट करना है, तो व्हाट विल डू इज विल जस्ट गो आउटसाइड ऑफ दिस लूप एंड वी विल टेक। क्लियर पीपल, एनी डाउट्स हाउ यू कैन डू दिस? नो डाउट। लेट्स से आई टोल्ड यू टू प्रिंट प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट प्रिंट करना है, तब क्या करोगे? बस एक दो छोटे से चेंजेस करने हैं एक्चुअली, राइट। पहला तो ये कि इसको ये करना है, दूसरा क्या है? करेक्ट, product should not be zero, right? Zero multiple any number, it's going to be zero. So we should be starting it from 1. So if I do this, I'll be getting whatever the multiple is. Now let's say I want to print every number in a line, right? I don't need a sum, बस neat little line में चाहिए. What do I mean by that? I want something like this: 13, 17, 19, 45. How can we do this? ये achieve कैसे करेंगे? I don't want it in array format. I just want it like this. No, you won't get a time limit issue for this. Don't worry. एंड आपको अभी के लिए एक्चुअली टाइम लिमिट के बारे में सोचना ही नहीं है. वी आर नॉट गोइंग फॉर डीएसए. मैं बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि लूप काम कैसे करता है जेएस में. ठीक, जब डीएसए पढ़ोगे तब टाइम लिमिट और स्पेस लिमिट के बारे में सोचना. अभी जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट. जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर फॉर नाउ. ठीक, तो विल गो विद आई एम नॉट गोना, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं. लेट दिस बी फॉर योर हेल्प. व्हाट आई विल डू इज, लेट मी close this one. Chalo. I will be creating a variable of str empty string, right? I'll be going for a for loop. Let me scroll down. I'll be going for a, not that much. Array नहीं दिख रहा है. Sorry. I'll be going for a for loop. I'll be doing this. इसके अंदर where I equals to 0, I will be less than array dot length I plus plus. In this I can do str plus equals to what? Array I plus a space. If I do a str now, node index, I'll be getting it in that fashion. Clear? Sure, that's fine. Let's have this array again. Let's say कि I want you guys to print the final sum of just the even numbers. जितने भी even numbers है ना, only I want sum of them. There are only 2 even number in this array, that is 12 and 50. So we should be getting 62. How can we do that? So what we can do is we can basically create a some variable, right? We can go for a for loop. It's already created somewhere. I am just gonna for where I equals to 0, I is less than array dot length, of course, I plus plus. In this I should be checking कि even है क्या नहीं, right? So how do we check even? Even कैसे check करते हैं? If it's divisible by 2, right? I'll write I is divisible by 2 equals to 0. I should be doing sum plus equals to array I. Is this correct, guys? Correct, take care. Yes. Let's see what I am printing. देखते हैं. Yes, no, okay. Let's see. If I do node index, what are we expecting? Check the array and tell me. 62. Let's see. We're printing 44. Why? हम किसकी divisibility check कर रहे हैं? Index की कि array के element की? हमें करना एलिमेंट का है, बट हम इस लाइन में इंडेक्स की चेक कर रहे हैं, राइट? तो हमारा इंडेक्स चालू हुआ 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, राइट? तो इसमें ये दो इवन नंबर है, राइट?
तो इट्स गोना सम दोस थिंग्स, ठीक। और उसमें भी हमने एरे डॉट लेंथ तक ही कर रखा है, इट्स नॉट गोना गेट द फाइनल वन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू चेक फॉर एरे आई if the elements are divisible. Clear? Now we should be getting 62. If I do this, we are getting 62. Is that thing clear? When you are checking divisibility, everyone? सबको clear है? ठीक है, ठीक है। Why I is index man, index है right? तो अगर इंडेक्स की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो विल इट बी कंपेयरिंग दीज एलिमेंट्स या फिर इनके इंडेक्स 0 1 को चेक करेगा, राइट? चलो, तो दैट्स फाइन, लेट मी कमेंट दिस आउट। अच्छा, डू यू गाइस रिमेंबर कि हाउ यू कैन कन्वर्ट अ लोअर केस string to uppercase? You can use that to uppercase inbuilt function, right? Let me write it. This one ये यूज कर सकते हैं, right? चलो, इसको ध्यान में रखना। आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन एंड टेल मी इफ वी कैन डू इट और नॉट। लेट्स से आई हैव अ वेरिएबल, राइट? आई हैव अ बेसिकली स्ट्रिंग, और इसमें स्ट्रिंग का एरे, ठीक, स्ट्रिंग एरे। इसमें आई हैव str1, str1 के बजाय नाम लिख देते हैं। लेट्स गो विद ऑरेंज, लेट्स गो विद एप्पल्स एंड लेट्स गो विद ग्रेप्स, ठीक। These are all in small letters, right? Small letter name. What I want you guys to print the array with each element in capital. Can we do that? Easy, right? All we have to do is we have to go for a for loop where I equals to 0, I is less than str array dot length I plus plus, and inside this what I have to do is str array का element, right, equals to str array I dot to uppercase and this. I want your opinion. Should this work? चलेगा क्या? Right? So if I go and if I print my array out, console.log str array, should I be printing every element with capital? Am I doing that? Right? So is it clear to everyone कि कैसे we are using array with loop? Right? So is there any proper case? Of course there is a proper case. So let's say you have you are in cart page, right? So you are in cart page and in that you have added elements, right? So let's say कि cart price है आपका, ठीक। पहला एलिमेंट, let me create these 3 steps. So cart price, cart quantity and cart item, ठीक। तो कार्ट पेज में ये 3 चीजें रहती हैं। हमारे पास आइटम रहेगा विद द आइटम्स नेम, वो आइटम कितना है 1 2 3, और उस आइटम का प्राइस क्या है। इज दैट समथिंग दैट इज इन कार्ट पेज? यस और नो? राइट, ऐसा कुछ रहता है कार्ट पेज में। तो लेट्स से कि हमारे पास पहला आइटम है एक शर्ट, राइट, और वो हमने लिया है 2 और उसका प्राइस है 500, ठीक। उसके बाद लेट्स से वी पिक्ड शूज, राइट, शूज पिक किया, ठीक। शूज लिए हमने 3 या 4, ठीक, एंड दिस इज कॉस्टिंग समवेयर बिटवीन 1000। इस कॉन्सेप्ट को छोड़ो, एरे लूप्स वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ, शर्ट 2 है, प्राइस है 500, शूज 4 है, प्राइस है 1000, व्हाट शुड बी द टोटल ऑफ दिस कार्ड? टोटल ऑफ कार्ड टोटल कितना होना चाहिए?
I'm seeing 1500, I'm seeing 500. Okay, okay. Let me help you guys a bit. शर्ट कितने हैं? 2 है. Yes, 2 shirts. What's the price? 500. So should it be 2 into 500? Yes or no? Yes or no? Right? And then again हमारे पास shoes कितने हैं? It's 4 and 4 into 1000. ठीक. तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा और इसका जो फाइनल आंसर आएगा, शुड बी ऐड देम टू गेट द फाइनल प्राइस which is coming out to it 5000. क्लियर है क्या? आर यू एबल टू रैप योर हेड अराउंड इट? अभी लॉजिक ने लिखा है, बस हमने लिखा है कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है, ज्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ा सा काम किया. क्लियर एवरीवन? जस्ट हाउ वी आर कमिंग अप विद दिस टोटल. क्लियर? कार्ड पेज पे ऐसा ही होता है, ऐसा ही कुछ होता है. राइट, यू आस्क फॉर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो मैं पोज कर रहा हूँ एक क्वेश्चन सो दैट यू गेट एन आइडिया कि हमें एरे चाहिए ही क्यों होगा. ठीक ठीक. तो वी आर स्टोरिंग ऑल द डेटा इन दिस फॉर्मेट. लेट्स से कि क्या इतने ही एलिमेंट्स रहने वाले? आई विल रिपीट वंस अगेन. we have created 3 arrays, right? एक एरे में वी आर स्टोरिंग द नेम. लेट मी इस एरे को स्टार्टिंग में रख देता हूँ. आई थिंक द क्रोनोलॉजी इज मेकिंग यू गाइस मिस इट. ठीक. इन फर्स्ट एरे वी हैव स्टोर्ड द नेम. इन सेकेंड एरे हमने उस चीज का प्राइस स्टोर किया और थर्ड में उसकी क्वांटिटी स्टोर किया. राइट. तो लेट्स से सिंपल लॉजिक वाला क्वेश्चन है. ठीक. जैसे ग्रुप में बैठा के बड़े बुजुर्ग पूछते रहे कि मेरे पास एक साइकिल है, उसका रेट है 5000. अगर मेरे को वैसे 3 और साइकिल खरीदने हैं तो फाइनल वैल्यू कितने होने वाली है? Am I gonna do a 5 into 5000 into 3? मैं बोलूंगा कि 15000 है ना? तो जस्ट वी आर डूइंग दैट. व्हाट वी आर डूइंग इज शर्ट का प्राइस है 500 और क्वांटिटी है 2, तो हमने क्या किया 500 into 2 दैट इज गोना बी 1000. शूज है, प्राइस है 1000, क्वांटिटी है 4, तो 1000 into 4 4000. 4000 plus 1000 is gonna be 5000. क्लियर? चलो. नाउ इज इट गोना बी द केस कि हम और एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते? I mean, of course, we can go for cart item dot push और इसके अंदर we can add something, right? तो let's say कि हमने ट्राउजर ऐड किया. Then in cart price I did cart price dot push ट्राउजर का रेट let's say 700. ठीक. And in quantity cart quantity I did push 4. समझ आता है what I'm trying to do? क्लियर? ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? आई मीन इट्स इजी, तभी मैं थोड़ा धीरे धीरे जा रहा हूं. ठीक. तो नाउ दिस एरे विल लुक समथिंग लाइक शर्ट कॉमा शूज कॉमा ट्राउजर. ऐसा कुछ दिखेगा? राइट. बाकियों के लिखने की जरूरत है नहीं? ठीक है. तो इफ आई गो फॉर लूप फॉर where I equals to 0, I is less than, गिवन दैट जब एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो लेंथ हमेशा सेम रखने वाले हैं. ठीक. तो लेंथ इज गोना बी सेम फॉर ऑल दीज 3. तो किसी का भी लेंथ यूज करूंगा, विल दैट बी फाइन? राइट. आई कैन यूज एनीवन्स लेंथ. तो आई रादर क्रिएट अ वेरिएबल जिसको मैं बोलूंगा लेंथ और उसको मैं नाम दे दूंगा कार्ड प्राइस डॉट लेंथ. ठीक. अभी क्या करूंगा, आई डू a length I plus plus and in this I have to print the final sum, right? तो let total equals to 0. ठीक. हमें क्या करना है, total plus equals to, we have to do a multiplication first. तो हमें क्या करना है, we have to do cart price I into cart quantity I. yes, क्या बोल रहा हूं मैं? इफ आई डू कार्ट प्राइस 0 into कार्ट क्वांटिटी 0, will I be getting
the final rate for 5 into 2. I'm gonna get that. Yes or no? अच्छा, let me reiterate it once again. एक और बार समझाता हूँ. तो अभी के लिए अच्छा मैं इनको एरे को वैसे लिख भी देता हूँ. आई थिंक दैट्स थ्रोइंग यू गाइस ऑफ. 500 शर्ट का रेट है, 1000 शूज का रेट है, 700 रेट है इसका. ठीक. इस एरे में दो क्वांटिटी है, 4 एंड 4 फिर से पुश कर दे. ठीक. अगर मैं ये लिखता हूं कार्ड प्राइस 0 इंटू कार्ड क्वांटिटी इंडेक्स 0, क्या मैं ऐसा कुछ करूंगा? ध्यान से देखना और बताना. कार्ड प्राइस 0 पे हमारा 500 है, इंटू कार्ड क्वांटिटी 0 पे हमारा 2 है. विल आई बी डूइंग समथिंग लाइक दिस एवरीवन? राइट. राइट. तो इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट. कम ऑन गाइस, ये एक एग्जांपल है. तो दिस विल बी योर प्रैक्टिस हो रही है, कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं. ठीक. चलो, तो कार्ड प्राइस 0 इंटू कार्ड क्वांटिटी 0 यही कर रहा हूं मैं, है ना? तो इफ आई ऐड दिस इन टोटल, इस टोटल में इसको ऐड कर दूंगा. फिर अगर मैं कार्ड प्राइस 1 इंटू कार्ड क्वांटिटी 1 करूंगा, विल इट बी 1000 इंटू 4. राइट. राइट. तो इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 1000. इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 4000. और हमने एक वेरिएबल बना रखा है यहाँ पे टोटल, जिसमें हम उसको प्लस इक्वल टू करते जा रहे हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? हम इस पे 1000 प्लस 4000 कर रहे हैं. उसी तरीके से मैं एक और बार इंडेक्स इंक्रीज करूंगा तो फिर से इसकी वैल्यू नए वाले की ऐड होगी, क्वांटिटी ऐड होगी. ऐसा ही होगा इन लूप. राइट. राइट. तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? I'll do is inside this I'll do a card price into card quantity. मैं इसको करता जाऊंगा ऐड इसमें. ठीक. if I try to finally print the console.log total, final total will be saying कि I'm just it's coming not a number. Card price I, right? Correct. एलिमेंट पकड़ना है. ठीक. कार्ड प्राइस आई, वे डू अ नोड इंडेक्स ऑन इट, विल बी सेइंग कि हम फाइनल जो भी वैल्यू है प्रिंट कर रहे हैं 7800. अंडरस्टूड? छोटा सा कोड है, इतना सा, बट वी हैव क्रिएटेड द लॉजिक फॉर अ कार्ड पेज. दिख रहा है हाउ इजी थिंग्स आर? देखने में कितना टफ लगता है कि कार्ड पेज है, उसका लॉजिक लिखा है, बट हाउ इजी इज दैट स्टफ. राइट. तो एक बार एरे सीख लिया, वी नो कि हाउ वी कैन डू एवरीथिंग. इज दिस क्लियर गाइस? किसको बाउंसर गया है? आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट वंस अगेन. जिसको बाउंसर गया है, नहीं गया तो प्लीज राइट 0 इन चैट. समझ आ गया तो एवरीवन 49 पीपल है एटलीस्ट, 49 zeros, राइट? ओके, दैट्स ग्रेट. ठीक है. तो दिस वाज अ वेरी गुड एग्जांपल. whoever asked, उन्होंने मेरे को इस डायरेक्शन में थिंक करने दिया, तो दैट्स ग्रेट. चलो, आई हैव एडेड दिस एग्जांपल. आई विल शेयर यू विद दिस कोड. ट्राई इट वंस फ्रॉम योर साइड. तो एनीवेज, इज एवरीथिंग क्लियर गाइस? आज जितना भी कुछ कवर किया, अगेन डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया, डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रो. ठीक. व्हाई डू वी नीड इट? हमने पढ़ा एरे, हाउ डू वी एक्सेस एरे, हाउ डू वी अपडेट एरे, हाउ डू वी डिलीट समथिंग. डिलीट करना है तो कौन सा इनपुट इनबिल्ट फंक्शन यूज करना पड़ेगा? अगेन लास्ट में से एक चीज निकालना है, पॉप. वेरी गुड. कुछ नया ऐड करना है लास्ट में तो पुश. वेरी गुड. ठीक है. देन वी लर्न कि हमें फॉर लूप कैसे चलाना है. तो इज एरे डॉट लेंथ, लिसन केयरफुली, एरे डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू लास्ट इंडेक्स.
Is that true? Array dot length is equals to last index. अच्छा, array dot length minus 1 is equals to last index. कभी भूलोगे ये बात? नहीं, ठीक है। कोई भी एरे हो, भले ही नंबर से स्टार्ट हो, भले ही बूलियन से स्टार्ट हो, भले ही स्ट्रिंग से स्टार्ट हो, उसका इंडेक्स कहां से स्टार्ट होने वाला है? जीरो से। जीरो से। जावा कौन से टाइप की लैंग्वेज है? स्ट्रिक्टली टाइप की लूजली टाइप? लूजली टाइप। तो हम एरे में डिफरेंट डेटा टाइप्स भर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट सॉरी, भर सकते हैं, राइट? ठीक, ठीक है। एंड इट्स प्रिटी क्लियर कि हम एक्सेस कैसे करेंगे उन एलिमेंट्स को, कैसे उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी चीज रह गई। लेट्स सी इफ यू गाइस कैन थिंक अबाउट दैट। हमारे पास एक एरे है, राइट? वेयर एरे इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं कंसोल डॉट तक एरे करूंगा तो आई विल बी प्रिंटिंग दैट एरे, बट लेट्स से कि मुझे ये एरे उल्टा प्रिंट करना है, तो आई हैव टू प्रिंट 5 4 3 2 1। कैन आई डू इट? जस्ट आई हैव टू रिवर्स इट, राइट? लेट्स से कि मैं एक खाली स्ट्रिंग बनाता हूं और उसमें स्टोर करेंगे हम लोग। लेट्स सी, तो आई हैव टू गो विद वेयर, लेट्स से कि आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस अ वेयर, राइट? नाउ आई कहां से स्टार्ट होगा? विल इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो? नहीं, नहीं, 5 से स्टार्ट होगा। तो कैन आई राइट इन हियर एंड यू गाइस कंफर्म array dot length -1? कैन आई राइट दिस? राइट, ठीक है। देन i इज लेस देन array dot length की क्या लिखना है? लास्ट फर्स्ट इंडेक्स क्या है? 0 तक करना है, राइट? विल बी गोइंग विद ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, करेक्ट। एंड देन i प्लस प्लस, यस यस, i माइनस माइनस, वेरी गुड। हम जाएंगे माइनस माइनस के साथ, बस डन डील। जस्ट इनसाइड दिस आई विल राइट प्लस इक्वल्स टू array I plus a space, and if I go in here, node index, we are not printing the str, so let's print it. Console.log str. Let's see, I do a node index. अभी हम लोग उल्टा प्रिंट कर रहे हैं। Is it clear, guys? ठीक, तो that's pretty much it.